पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एक फिल्म आ रही है आपकी, हम्म। जैसे पटेल की पंजाबी शादी। राइट। ये किस तरह की फिल्म है? क्या ये टू स्टेट्स जैसी फिल्म है या फिर कुछ अलग ही जॉनर है नहीं फिल्म नहीं, का? अलग है। या इट्स लाइक अबाउट गुजराती एंड पंजाबी एंड द लव अफेयर बिटवीन अ गुजराती गर्ल एंड अ पंजाबी बॉय, बट इट्स नॉट लाइक अ टू स्टेट्स वन. And it's a rom-com. It's a family drama, and we have Pareshji and Rishi Kapoor also. Pareshji is playing my father and Rishiji is playing Veer's father. ओके। So it's lots of comedy is there, and it's a very entertaining film. लेट अस नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ योर कास्टिंग। मतलब किस तरह से आपके पास ये फिल्म आई, क्योंकि ये रोम कॉम बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम से Right, right, टाइटल है फिल्म का। right. And actually, the this producer of this film is distributor of one of my Telugu movies with Junior NTR. So they distributed it in Hindi. ओके। So it's coming in on television as Mar Mitenge. हम्म। So then they liked my work, and then they started asking the casting directors and all about me. That's how I came to know the director. They have taken my audition, and photo sessions also we have done. And then they felt that I will suit in the character of a Gujarati girl. So I was in. दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू Yeah, हिंदी मूवी। this is my debut in So how much are you Hindi excited movies. for this? I'm very excited, and along with that, I'm working with such a great actors. Means Rishi ji, Paresh ji. Means you can learn so much being a newcomer into this industry, and you are working with the veterans who are stalwarts in the industry. You are getting the chance to work with them. It's a big thing, and so you have so much scope to learn from them about so many things, about the experience and their acting way, and you have like you have guidance on set because they are such an experienced actor. They will really guide you well the way they do to me. So it's a learning process as well. क्या क्या एक्सपीरियंस आपको बॉलीवुड में Ma'am, मिला? this camera, look, Bollywood, this which one? camera, This one? ये look camera, this center, Yeah, this ये one. ये camera, मुझे इतना लाइट में कुछ नहीं दिख रहा है उधर. हाँ ये ठीक है. कैमरे में, हाँ ये look में. Okay, this one. Yeah. Yeah. Repeat your question. क्या क्या एक्सपीरियंस आपको मिला बॉलीवुड में वर्क करके? बहुत अच्छा. पहली बात तो सबका सपना होता है बॉलीवुड में काम करना, और वो भी एज अ सोलो हीरोइन विथ सच स्टॉलवर्ड्स, एंड सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. पर कोई ऐसा लम्हा आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके जहन में अभी भी जब आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? ऐसे तो बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, बट या व्हेन आई डिड माय फर्स्ट तेलुगु मूवी, आई गॉट डेब्यू in my Telugu movie, and when people come and tell me that very few people are lucky enough to do such kind of movie. ऐसे तो normal commercial movies होता ही है, and though it's a commercial movie but it has a different aspect, and working with a national award winner director, और लोग बोलते हैं you are so lucky कि you have been chosen for this movie, and which I wasn't wanting to do in the initial days. ओके। तो अभी भी दैट द फिल्म इज़ अ हिस्ट्री इन तेलुगु इंडस्ट्री. तो बहुत वो चीज़ जब भी मैं सोचती हूँ कि हाउ द थिंग्स हैपन एंड हाउ इट मेक्स मी फील गुड इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप उन तेलुगु फिल्म में खास तौर पर आप नहीं जाना चाहती थी? क्या रीजन क्या था? एक तो मैं आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो साउथ इंडस्ट्रीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, ओके। और अबव दैट इज़ दैट मेरे फैमिली चाहते ही नहीं थे कि मैं फिल्म में आऊँ. दे वर डेड अगेंस्ट दिस फिल्म थिंग. So I ran away from home, came to my sister's house, and from where I started my journey. I did my acting course from Namit sir. So during the process only I got this film. तो मतलब तो it happened like this. It's not that I didn't want to do purposely, but मेरे घर से allow नहीं कर रहे थे. Then the director and the whole team, पहले तो मैं I said no to them. Then they were looking for other girls. For 3 months they searched for girls all over India. Okay. Then when they, and somehow it happens always. It's in director's mind.
seeing someone and he feels that she's a girl. After that, no matter whatever, they don't like to cast anybody else. So that's how it happened in my case also. They want a very innocent and young girl for the film. So after 3 months also, again they came back to me and they convinced my dad, my family. Then my even my bua also convinced my dad कि ठीक है चलो एक ही film करेगी, आगे नहीं करेगी, allow कर दो. And they also allowed कि family को लेके आओ, you have no tension, like we are good people, don't worry. तो हो गया, होना था ना, it was to happen, so happened. Everything is destiny. जब आप घर छोड़कर हाँ. अपने करियर की ओर आप बढ़ रही थी, अपने सपने को पूरा करने के लिए आप मुंबई आई थी, तो उस दौरान फैमिली का क्या रिएक्शन था? और जब आपने फर्स्ट फिल्म हाँ. आपने की और जब आप बड़े बड़े तरफ हाँ. दिखी, तब उनका क्या रिएक्शन था? When I was here, my dad didn't talk to me for 6 months because I wanted to be in films. Because of that, he was very angry. He didn't talk to me for 6 months. But financially, all the help was coming from my family. Because I was staying here, so obviously they know the needs and all. So financial support was there. Even my brother was here and other members were here. They were coming and उन लोगों का support था. But my dad was very hurt because he's very conservative minded person. तो उनके लिए film तो और वो भी उनकी बेटी सोच ही नहीं सकते हैं. तो he wasn't happy, but after that when the film got released, it became hit and he saw that nothing, that I didn't do anything in the film which is relatives को दिखाने में लगेगा कि ये कैसे कपड़े पहन लिया या कैसे बोल लिया, मतलब nothing as such was there in the film. So he was very happy. Then he started feeling proud and the things then after that उसके बाद चीज़ें अच्छे होने लगे और अच्छे होने लगे. So there was no look back, touch wood, with all God's grace and my parents' blessing. तो सब अच्छे होते तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे चले. और पापा तो माँ, पेरेंट्स ऑलवेज कुछ भी पहले गुस्सा करते फिर मान ही लेते हैं because they love their child and they will never go, they won't leave their child like that. They are always there. कोई रहे ना रहे, parents are always there. कभी कोई ऐसा ख्याल भी आया था जब मैं आप कभी सोचती थी कि जब मैं अगर अपना नाम नहीं कमा पाऊंगी, जब मैं फिल्मों में ऐसा नहीं आ कभी पाऊंगी, हाँ, तो उसके बाद क्या करूंगी? ऐसा कभी मौका आया ही नहीं है. On the 7th day of my being in Bombay, I signed Sharp's Peril, acted with Sean Bean. He did many films. He was the main villain of James Bond in GoldenEye. Yeah. Then he is one of the very famous character in Games of Thrones. So इतने मतलब शुरू ही ऐसा हुआ है. It was a BBC telefeature film. तो वो सोच, एक तो मैं बहुत छोटी थी तभी, तो इतना फिल्म को, इतना भी करियर को लेके सोच नहीं रही थी. That time what was more important was to do my studies and do it well, to get good grades and all. That was much more that was the focus. But ये सब होता रहा, तो जैसे होते रहे तो I was very happy कि ठीक है हो रहा है. ऐसा कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया इंडस्ट्री ने मुझे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. हो ही रहा है सब कुछ. एवरीथिंग हैपन लाइक मैजिक. फाइनली इतने बैरियर्स, इतनी डिफिकल्टीज झेलने के बाद आप एक बिग पैनल में और बहुत ही मंजे हुए कलाकार के साथ आप आने वाली फिल्म. मैं आपको जानना चाहूँगा कि जो तेलुगु फिल्म है वो आपने जब किया और जब बॉलीवुड फिल्म आपने किया, दोनों में आपने किस तरह का अंतर आपने देखा? As such difference तो कुछ नहीं है, because other than the timings, we in South films we start shooting from 8 o'clock in the morning and wind up by 6 in the evening. But in Bollywood we start at 11 in the afternoon, then we continue till 10, 11. Other than the timings, everything is same. Means both the industry are very caring and lovely people around. And film industry लोग ऐसे बाहर से कितना कुछ बोलते हैं, but सच पूछो तो बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है. इतना सपोर्टिव नहीं होने से इतना, जहाँ पे इतना मारपीट है, यहाँ पे जितना इतना टैसल्स है, वहाँ पे विदाउट पीपल सपोर्ट तो आगे आना मुश्किल ही है. इवन जैसे कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, तेलुगु हो या फिर बॉलीवुड हो, शूटिंग पैटर्न स्टाइल सेम. हाँ एकदम सेम. और क्या, सबको शूट करना ही है, फिल्म बनानी है. जैसे कि आपने कहा कि आपके फैमिली ने फर्स्ट आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आपको किसने इंस्पायर किया कि आप फिल्म
इंडस्ट्री में आए? माई कज़न्स एक्चुअली मीन्स इवन मैं जब आ रही थी तो घर पे किसी को बताया नहीं था तो भाग के आई थी तो माई कज़न्स उन मेरे I have a big family. We are 36 members in one family. सब तो मेरे cousins अपने मैंने pocket money से they have given their money to me. We bought the ticket and I ran away. So without their inspiration and support and without my belief in myself, I wouldn't have been able. आपने बहुत सारी लव स्टोरी की है, तो आप लव स्टोरी के अलावा भी कुछ और मूवीज करना चाहती है, लाइक एडवेंचरस, एक्शन? मैंने एक कन्नड़ मूवी की है. द फिल्म नेम से वर्षाधारे. इन दैट फिल्म आई प्लेड अ रोल ऑफ अ हाउस वाइफ हु हैज split personality. So I had huge scope of acting in that film. So that was a film which was different from my other films because I have always played a college girl in love. So that was a very different film. I am sure that and I wish you guys do watch and that's I would love अगर ये लोग उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके इफ दे शो इट. इट्स अ लवली मूवी. और else कभी मैं दिखा दूंगी आप फिर लोग भी को. पायल, कोई आपकी नज़र में एज एन एक्टर कोई ऐसा सिनेमा है या फिर कोई ऐसा जॉनर है जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहती है एज एन एक्टर? One of the film which is Earth is a film which I would love to do. I would love to play the role of Smita Patel. Okay. Something I always felt he had means you can really portray yourself in different manners. A glamour girl, along with that, the acting part. I was so moved and by her acting. I really adore her for that. Means I have seen the movie so many times only because of her. What a lovely acting she did in that movie. I'm moved. I would really love to do something like that. Okay, apart from Smita Patel ji, in Bollywood, who is your source of inspiration? Madhuri Dixit. Why? She's beautiful. She is. Means her expressions are something which can kill anybody. Something which talks, which is so natural, along with that, with lots of attraction. You really get. Means I really get fascinated towards her. She's a lovely actor, lovely dancer. और सिर्फ जब डांस करती है सिर्फ उनके हाथ पैर नहीं मूव होते हैं उनके साथ उनके एक्सप्रेशंस भी मीन्स इन द सेम मैनर इन द सेम डेप्थ इट वर्क्स. अभी भी जब भी कोई मैं कुछ ऐसे कुछ लव सॉन्ग्स करती हूँ कुछ ऐसा करती हूँ तो मुझे माधुरी जी के जो धक धक करने वाले के एक्सप्रेशंस शी गेव. It always comes in front of me. It comes. What an expression she has given in the song. Wow, means I really love her. Yeah, she is evergreen beauty. हाँ बचपन से ही मतलब बचपन से मेरे स्टडी रूम में उनके फोटो चारों तरफ लगा रहता था. इफ आपको चांस मिला माधुरी दीक्षित के साथ काम करने का, तो व्हाट विल बी योर फीलिंग्स? मैं तो यहाँ से जंप. I would love to. Mean she's something. She's something beyond anything. और कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस के साथ आप वर्क करना चाहेंगे? सबके साथ करना चाहती हूँ. किसी को छोड़ना Any नहीं particular चाहती. name? I would means my favorite actor hero is Shah Rukh Khan and Ranbir Kapoor. Okay. Shah Rukh Khan is because I love stories, so he is the king of romance. So yes, I really love her. Well, I mean love him, and I love Ranbir because Ranbir is one of the actor whose acting prowess is beyond the means beyond our thought. When we go and watch a movie, we thought that okay, this could be the acting, but the way he acts, which goes beyond the thought. So he is really very very creative, and this guy is gonna means he has that capability to get Oscar. He's another Leonardo DiCaprio of India. Suppose आपको फोन आता है और कहा जाता है कि आप रणवीर की आप नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन हैं, फिर I'll be happy. उनके पापा के साथ आज काम कर रही हूँ, कल बेटे के साथ. उनकी फिल्म भी आई तो हाँ. कितने एक्साइटेड होंगे? एकदम. I have already booked the ticket for Aidil hai Mushkil. So I'm going on 28th. ओके, आने वाले समय में आप किस तरह कौन कौन सी फिल्में होंगी इसके बारे में बताइए. मतलब हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. I'm in talk with many directors who are quite famous because अभी तो मैं बोल नहीं सकती लेकिन
या दे आर 54 फिल्म्स. तो उनके प्लानिंग चल रहा है, काफ़ी दिन से हो गया, 6-7 महीना हो गया, प्री प्रोडक्शन चल रहा है. तो वंस एवरीथिंग इज डन विल अनाउंस इट सुन, एंड आई एम डूइंग तेलुगु तमिल एज वेल अलॉन्ग विद दैट. कोई भी न्यू कमर जब इंडस्ट्री में कदम करता है तो काफ़ी सारे रिवैलरी होते हैं, हाँ. कंपैटिटर्स होते हैं. कभी आपके साथ ऐसा कोई फेस करना पड़ा, कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे लोग साथ मिले ऐसे इंडस्ट्री में जो मतलब बैक बाइटिंग करते. हाँ बैक बैक या कंपैटिटर्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, डिफिकल्टीज होती है. कॉम्पिटिटर कौन लगा बेसिकली, राइट? हाँ मेरे अभी पहले रिलीज हो जाए, फिर और 1-2 फिल्म कर लूँ, फिर उसके बाद देखूंगी कि किसको कम्पीट करना चाहिए मुझे. एट दिस पॉइंट आई एम अ न्यू कमर एंड मुझे सबकी मीन्स आई वांट द होल इंडस्ट्री सपोर्ट, बिकॉज विदाउट देयर सपोर्ट आई कैन नॉट गो अहेड, एंड दिस इज नॉट द टाइम फॉर मी टू थिंक अबाउट competitors or something, because I'm very new to the industry. My film is not yet released, it's about to get released. So आगे देखेंगे किसको compete करेंगे, और compete क्या करेंगे यार, सबको सब अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने जगह है. मुझे अपना जगह बनाना है, किसी को मतलब किसी को धक्का देके या किसी को छोटा करके मैं आई कैन नॉट बी बिग. I have to make my own place. I don't want to snatch anyone's place, or I don't want to think that I'm competitor of someone. I will do my work. I will give my 100%. And try to make it good and watchable, and I want to make my fans happy. बाकी मैं कुछ सोचती नहीं हूँ. हाँ बोलो. देखा जाए तो अभी आपकी मूवी काफी डिले हो गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अभी और नहीं होगी, बिकॉज बीच में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी था, और थोड़ा एक्टर्स के डेट्स का था, थोड़ा हुआ. बट जब होगा तब अच्छा ही होगा, बोलते हैं ना. जो इवन देयर आर मेनी फिल्म्स जो काफ़ी डिले हुए थे, और आखिर में जाके दे बिकम द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री. तो I have seen the movie, and I have seen the movie when Rishi ji has seen the movie, and we are very very happy about the movie, and we have a huge expectation from the movie. The director really did well. He really did his job well. तो एक्सपेक्टेशन बहुत है फिल्म से. रिलीज़ जब होगी, आगे पीछे 1-2 महीने में जब भी रिलीज़ होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस विल बी रियली हैप्पी विद द रिलीज, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ अ फैमिली ड्रामा. कुछ भी इधर उधर, मतलब वेरी क्लीन एंड क्लियर मूवी. घर बच्चे भी देख सकते हैं और एंजॉय करेंगे. अच्छा, आपने ऋषि जी के साथ काम किया है, उन्होंने फिल्म भी देख ली है, जाहिर सी बात है आपकी एक्टिंग देखी होगी. हाँ. तो एज अ एक्टर किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको? He came and hugged me and said you did a really great job. I'm very happy with your work. And सबको बोला she's looking beautiful, and she has done a very big, means I was jumping. I came back home and was jumping. Yeah, Rishi is happy because he is very straightforward. He is not like कुछ भी बोल देता है, जो भी बोलना है बोल देते हैं. And if he has said that, means I am very happy. Means he really liked my work. I was very very happy after hearing that. ओके पायल, बचपन से ही आपका एक्टिंग की तरफ रुझान था, या और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, कई चीज़ें हैं? नहीं, मुझे लगता था मतलब होना ही था ये. मतलब एक्टिंग में स्कूल में कॉलेज में मैंने काफ़ी सारे ड्रामास किए हैं. जो भी जब भी कोई ड्रामा लाइक जो कॉलेज फेस्ट स्कूल फेस्ट में होता है, सो आई हैव ऑलवेज टेकन पार्ट इन दोज dramas, and and I always became famous. I always used to be the heroine of the dramas, and people means मेरे friends all used to call me, मतलब कुछ दिन तो उसी नाम से बुलाते थे, like तिथि or रोशनी, whichever the character I played, they started calling me in those names only, because they said इतना तू कर लेती है ना अच्छे से, वही लगता है कि तू वही है. और मज़े की बात ये है, जब मैंने तेलुगु फिल्म की, एंड माई ऑन स्क्रीन नेम वॉज हारिका. Now till today the whole Telugu industry calls me by Harika. मतलब It's a great thing. मतलब it's a compliment. It's like a compliment. Absolutely, it's a compliment. It's very. I tell you, means I'm very very lucky. I'm God's child. इतना blessings है ना, तो I'm very grateful. आपने अपना कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा एंजॉय किया? मुझे तो वैसे क्यूट वाला स्वीट वाला अच्छा लगता है. अभी तो कर लूँ, आगे तो बहुत टाइम है, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट जॉनर में काम कर सकते हैं. बट अभी मैं ज़्यादा ही रोमांटिक फिल्म करना चाहती हूँ.
ओके, पटेल की पंजाबी शादी में जो आपका कैरेक्टर है वो किस तरह का कैरेक्टर है? Sweet, cute girl in college and daughter of a strict father, like my father was in her. Okay. And she dreams big. She wants to become something big in life. लेकिन उसके पापा रोकते हैं. The same way it happened in my real life. तो बहुत कुछ ऐसा है कि जिससे मैं अपने आप को रियल Connect कर लाइफ सकती हाँ हो। कनेक्ट कर सकती हूँ एग्जैक्टली. कोई एक क्वालिटी है जो आप रियल लाइफ में रिटेन करना चाहती हो, जो उस कैरेक्टर का क्वालिटी था फिल्म में, वो रियल लाइफ में आप लाना चाहती हो अपने अंदर? वहाँ पे द गर्ल मतलब जब मैं कैरेक्टर ये पोर्ट्रे कर रही थी तो मुझे लग ही रहा था कि मैं वही लड़की हूँ, क्योंकि आई कैन सी माई सेल्फ वॉट आई वॉज बिफोर कमिंग इन टू द इंडस्ट्री, द सेम गर्ल हु इज and who loves her dad a lot, and I don't have mom, even in the film I don't have mom. तो Okay. इतना मैंने रिलेट किया ना चीज़ों Okay. से, तो क्वाइट मेरा ही है. अदर देन लिटिल मतलब थोड़ा बहुत वो तो होगा ही अदर देन, Different. बट काफ़ी मतलब मेरे साथ आई कैन रियली रिलेट विद द कैरेक्टर. हमने सुना है आप सिंगिंग भी करती है, यू आर अ गुड सिंगर. बाथरूम में when I sing in the bathroom with the echo that of course happens in the bathroom, तब मुझे रॉली लगता है मैं बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ. ओके. आप थोड़ा गाएंगे हमारे लिए, हम भी सुने आपकी वॉइस कैसी है. Oh my god. मैं ऐ दिल है मुश्किल का गाना गाती हूँ. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल. वाओ, दैट्स नाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. लास्टली हाँ. हम ये जानना चाहेंगे फिल्म क्यों इतनी अलग है, क्यों हम सिनेमा घरों में हम जाए देखने के लिए, और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी फैन? ऐ दिल है मुश्किल के लिए. ओ मेरी फिल्म के लिए. अच्छा, इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस मीन्स अभी जो मैं फील करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म देखना ज़्यादा पसंद है, और रोमांटिक कॉमेडी ऑफ कोर्स, क्योंकि वी हैव सो मच स्ट्रेस इन आवर ओन लाइव्स. अभी इतना मतलब कहाँ मतलब so much stress, work stress, then family stress, these and that, so many things around. तो उसमें जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पर फिल्म देखने जाते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा कुछ फिल्म देखे यार कि वो 2-2.5 घंटा जब बैठेंगे ना तो मज़ा आ जाए, निकल के उसके बारे में थोड़ा फ्रेश हो जाए. तो और फिर वहाँ पे थिएटर में जाके भी रोना धोना देखो, दुखी हो जाओ. और अभी सोशल मीडिया एंड ऑल इज सो, आप तुमको तो पता है अभी वो भी और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस देता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, जेएनयू में ये हो रहा है, वहाँ पे मतलब कभी किसको मार दिया, एवरीथिंग यू सी इट ऑन फेसबुक एंड ऑल. वो तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, वो फिल्म में जाके भी वही देखे फिर मतलब नहीं है ना. तो मुझे इसीलिए आई ऑलवेज एंजॉय रोमांटिक कॉमेडी जहाँ पे प्यार लव सब हो, यू नो, गुड सॉन्ग्स एंड मज़ा आ जाए देख के, है थोड़ा हंसे. तो यू नो लाइक तो हमारे फिल्म एग्जैक्टली वही है कि यू गो वॉच सेंसिबल कॉमेडी. ऐसा नहीं कि तुम्हारे ब्रेन घर पे रख के जाना पड़ेगा, एकदम फैमिली ड्रामा है और तुम एंजॉय करोगे एंड एवरीथिंग इज लाइक हैज़ मीनिंग, नॉट बियॉन्ड मीनिंग कि ऐसा कुछ कॉमेडी है जिसका कुछ एक के साथ दूसरा लिंक नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फैमिली ड्रामा जैसे अपने घर में मजाक होते हैं ऐसा वैसे ही है. बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी, लिटिल रोमांटिक, लवली सॉन्ग्स. ललित पंडित जी ने म्यूजिक दिए हैं. ललित जी इज जतिन ललित है. तो जतिन जी तो इज नॉट हियर, ही इज इन यूएस. या ललित जी हैज कंपोज द म्यूजिक. The songs sang by Neha Kakkar, Shan, then Mika Singh. So and choreographed by Ganesh Acharya. So we have all the veterans in the industry. So और Neha and all is doing well nowadays. तो सब कुछ मज़ा आएगा. बहुत फुट टैपिंग म्यूज़िक है, कलरफुल है मूवी. ऐसा नहीं कि बहुत ही ब्लैक एंड वाइट टाइप है, ऐसा बहुत कलरफुल है.
release date they had to announce because they are coming up with a video studio. So सबका everybody has to decide on the date so that we don't clash with some other big movies. So तो फिर problem होता है. So screen मिलने में, theaters मिलने में. तो अभी within a week or something they will decide and announce a date. डेट एक बार अनाउंस हो गया तो ट्रेलर वगैरह सॉन्ग रिलीज सब हो जाएगा बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन सेट. तो आने वाला जो वीक है वो दिवाली का ही है और उतने टाइम में आप दिवाली भी मना लेंगी और अनाउंसमेंट भी होगा. इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता. और सामने में माय बर्थडे इज कमिंग ऑन 13 नवंबर. तब तक अगर मेरी फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. आई विल बी लाइक इन क्लाउड 9. जैसे कि आपने कहा कि ये एक रोमांटिक मूवी भी है, तो आपकी कोई रोमांटिक सीन्स है इसमें? हाँ मतलब जैसे एक कंजर्वेटिव पापा की बेटी को जैसे प्यार करना चाहिए वैसे वाला प्यार है. आप उसमें एक गुजराती गर्ल है, तो हाँ. आपने अपने गुजराती कैरेक्टर को कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया. सारे गुजरातीज ही है वहाँ पे. मुझे पोहा भी मीठा मीठा मिलता था. तो और मेरे डायरेक्टर ने तो शुरू के 15 दिन बोले यू हैव टू बी इनटू द कैरेक्टर सो यू कैन नॉट ईट नॉन वेज. यू हैव टू. आई एम अ प्योर नॉन वेजिटेरियन और मुझे 15 दिन प्योर वेजिटेरियन बना दिया था टू बी इनटू द कैरेक्टर ऑफ अ गुजराती गर्ल. तो खा रही थी वैसे ही मैं ऐसे नॉर्मली हो गई गुजराती खाना खा के. आपने कहा कि उसमें एक गरबा सॉन्ग भी है. हाँ. तो आपको गरबा कितना पसंद है? अब उतना पहले से रिबन काटने के लिए जाती थी. इस टाइम गई डांस किया. अभी वी हैव शॉट द गरबा विद 10,000 रॉयल डांसर्स. जेवीपीडी के जो गरबा है वहाँ पे इतना मज़ा आया. वाओ. अभी तो नेक्स्ट ईयर से मैं डांडिया खेलने जाऊँगी. कुछ दिवाली विशेष या कुछ किस तरह करने वाले दिवाली विशेष और पॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, मतलब जो सेव रहे? हाँ तो फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिवाली. हाँ पहले शुरू से बोलूँ. या नाम के साथ आप- Hi, hi. This is Payal Ghosh, and wish you all a very happy and safe Diwali. Have fun, eat well, don't do dieting and all. This is the time. Again, after 1 year, it is gonna come. So enjoy these 3-4 days. थैंक यू. Thank you so much. Or I listen. I have to say that don't use bombs and all because the sound pollution should be curbed, and because we can talk for 1-2 days celebration. We shouldn't harm anybody else because old people are there whose heart is not as good as ours. So we should think about them and birds and animals who cannot talk, who cannot say, but they really get scared. And we should think about them and the people who is suffering from heart, who are heart patients and all. So we should celebrate in a nice way, but we should also think about the people who are there and who may get affected from our enjoyment. So our enjoyment should be something which will make us happy and others as well. And so do take care. We are social being. We should think about our society. If we don't think about our society, then who else will? So we should be together and we should do really good for our society and make it a lovely place to live in. Thank you. Thank you so much. You were fully sorted. And wish you all the best for your future. Thank you so much. और फिल्म भी है. हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सिनेमा घरों में आए. Thank you. और आप सब आना देखने के लिए एकदम. I'll keep a premiere for you all. और हम ये भी विश करते हैं कि आप रणबीर की नेक्स्ट मूवी में उनकी हीरोइन. Yeah, thank you. In Shahrukh. Thank And you. with Madhuri Dixit too. You're fully sorted. Thank Nice- you. Nice to talk with you. Thank you so much. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.